students, how are you all? Hope you all are doing good. Let's start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 8, water for all. Okay, so आज हम water के बारे में discuss करेंगे, उसकी importance को, properties को. Okay, चलो, see. Other than air, water is the most important substance needed by living beings. So air के अलावा water भी एक बहुत important substance है जो सभी living beings की requirement है. Living beings without water survive नहीं कर सकते हैं. जो water हम mainly use करते हैं वो कहाँ से? River, pond, lake and well से हमको मिलता है. ओके उसके बाद क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस हैं लाइक सैंड, डर्ट, मर्ड, जम्स, ये सब आपके वाटर में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं सब्सटेंसेस, एंड ये हमारे इस पानी को अनफिट बनाते हैं यूज़ के लिए. और इन सभी सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज. ये सभी सब्सटेंसेस जो पानी को अनफिट बनाएंगे फॉर द यूज, फॉर द कंजम्पशन, we have to discuss about the topic that is water. So like air, water is also essential for life. It is found on the earth in different sources like a river, ocean, under the ground, etc. We need water for our day-to-day requirements like drinking, cleaning, cooking and washing. So student, what they're saying, I told you कि जैसे air हमारे लिए बहुत important है सभी living beings के लिए, similarly water is also very essential. ठीक है, आपको earth पर different sources के through water मिल सकता है like river, ocean, under the ground, and इस water की requirement हमारे day to day needs के लिए है, जैसे कि drinking, cleaning, cooking, washing and many more things. इन सभी requirements को fulfill करने के लिए water is needed. Okay, अब I told you about the impurities also. Impurities भी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है soluble impurities. अब ये वो impurities हैं जो water में dissolve हो जाती हैं, उन impurities को soluble impurities कहा जाता है. Example germs and bacteria. And next we are having insoluble impurities. ये वो impurities हैं जो water में dissolve नहीं होती हैं, like sand and mud. Okay, चलो. Now we have to discuss the topic which is properties of water. Water की properties के बारे में discuss करेंगे. So water की एक unique ability है कि ये बहुत सारे substances को अपने अंदर dissolve कर सकता है, और इसीलिए water को universal solvent कहा जाता है. काफ़ी important है water हर living being के लिए, because water आपका water cycle की तरह move करता है and काफ़ी valuable nutrients को अपने साथ carry करता है. वाटर का कोई कलर, टेस्ट या स्मेल नहीं होता है. वाटर हमें सभी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलता है इन आवर नेचर. इनफैक्ट ये एक अकेला ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे नेचर में सभी 3 स्टेट्स में प्रेजेंट है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. वाटर आपका काफ़ी सारी हीट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड इसीलिए वाटर इज़ वेरी वैल्यूएबल टू इंडस्ट्रीज. ओके, एज अ कूलेंट भी वाटर का व्हीकल्स के अंदर यूज़ किया जाता है. Now we are going to discuss about removing soluble impurities. So I told you soluble impurities वो impurities हैं जो water में dissolve हो जाती हैं, लेकिन impurities are not good for us. So therefore we need to remove them. So how are we going to do that? That only we have to discuss. So ज़्यादातर soluble impurities को आप इनमें से कोई 2 method के through remove कर सकते हो, filter कर सकते हो. That is evaporation method and distillation method. So first of all we are going to discuss about evaporation method. ये क्या है? ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे हम soluble impurities को remove कर सकते हैं from the water. Like salt from water. आप क्या करोगे? आपको water लेना है, impure water, यानी कि ऐसा पानी जिसके अंदर salt, which is a kind of soluble impurity, वो है. आपने उसको एक वेसल में लिया और आपने उसको हीट करना शुरू किया. कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो वाटर है वेसल के अंदर वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वेपर में. एंड इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है, जहाँ वाटर वेपर में चेंज होने लगता है ऑन हीटिंग. दैट इज नोन एज इवेपोरेशन. थोड़ी देर बाद आपको जितना भी पानी है वेसल में वो वेपर में चेंज होने लगेगा, एंड जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे ही सेट हो जाएंगी इन द वेसल. दैट इज नोन एज इवेपोरेशन मेथड. नेक्स्ट वी कम टू डिस्टिलेशन मेथड. डिस्टिलेशन मेथड भी एक आपका वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, यानी कि इसके थ्रू वाटर को प्योरीफाई किया जाता है. इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल अपैरेटस होता है, स्पेशल मटेरियल हमको रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें आपके पास एक राउंड बॉटम डिस्टिलिंग फ्लास्क होगा, एक वाटर कंडेंसर, एक रिसीविंग फ्लास्क एंड एक बर्नर. इन सभी की रिक्वायरमेंट होती है. अब डिस्टिलेशन में क्या होगा, जो कंटेमिनेटेड वाटर है यानी कि जो इम्प्योर वाटर है आप उसको हीट करोगे, एंड तब तक हीट करोगे जब तक कि बॉयल होना स्टार्ट
नहीं हो जाता। फिर उसके बाद ये बॉइलिंग वाटर धीरे धीरे स्टीम में चेंज होने लगेगा, जिसकी वजह से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे फ्लास्क में ही रह जाएंगी। फिर आप उस स्टीम को कंडेंसर के थ्रू पास करोगे, एंड उस कंडेंसर के थ्रू जैसे ही पास करोगे वहाँ कंडेंसर में ये पानी क्या होता है, कंडेंसर में टेम्परेचर कम होता है, यानी कि ये स्टीम वहाँ जाकर कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, एंड दोबारा से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। एंड फिर आपको क्या, ये सारा क्लीन वाटर उस रिसीविंग फ्लास्क में मिल जाएगा। ओके, चलो ये आपका डिस्टिलेशन मेथड था। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करते हैं? आई टोल्ड यू द इम्प्योरिटीज विच डू नॉट गेट डिसॉल्व इन वाटर, दे आर नोन एज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जैसे कि पीसेज ऑफ स्टोन, सैंड, चॉक, ओके, एंड मेनी काइंड ऑफ डिजीज्ड जर्म्स। ये सब पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, एंड इसीलिए इनको इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहा जाता है। अब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए वी आर हैविंग 3 मेथड्स, ओके, सो दैट हम पानी के अंदर से इनको रिमूव कर सकें। एंड बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं लेकिन डिसॉल्व नहीं होती है। इन इम्प्योरिटीज को भी आप डिफरेंट मेथड से रिमूव कर सकते हो, दैट इज सेडिमेंटेशन, डिकेटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को वाटर में से रिमूव किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 में क्या है, कलेक्ट अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द सी शोर एज अ वेव कम्स इन। सी शोर होता है जैसे वेव आपकी तरफ आती है, आपको वहाँ से एक ग्लास ऑफ वाटर कलेक्ट करना है। अगर आप सी के पास नहीं रहते हो तो आप क्या करो, जो आपका सैंड होती है, सैंड 1 स्पून लेकर आपको एक टैप वाटर ग्लास में उसको मिक्स कर देना है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वाला पानी रेडी हो जाएगा। आप उसको लोगे एंड देन आपको उस ग्लास ऑफ वाटर को, जिसमें आपने अभी 1 टीस्पूनफुल ऑफ सैंड मिक्स करी है, उस पानी को मिक्स करने के बाद आप उसे अराउंड 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दो, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे, अनडिस्टर्ब। ओके, चलो नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व, कुछ देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जितने भी उसके अंदर सैंड या जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे वो सारे नीचे सेट हो चुके होंगे, एंड जो पानी है वो आपका ऊपर की तरफ आ चुका होगा। सो द सेटिंग डाउन ऑफ हेवियर पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटीज एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सो यहीं पे जो क्या हुआ, जितने भी हेवियर पार्टिकल्स थे, जो भी इम्प्योरिटीज थी, वो जो नीचे बॉटम सरफेस पे सेट हो चुकी हैं, इसी को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। जो अनडिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज नीचे आपको मिली है वो सेडिमेंट होता है, एंड प्रोसेस का नाम सेडिमेंटेशन होता है। ठीक है, सो व्हेन वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ कंटेनर फॉर फ्यू आवर्स, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यू कैन सी ये आपका मिक्स्ड वाटर था सारा, इसमें इम्प्योरिटीज सब कुछ थी, आपने इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट पोजीशन पे रखा, जितना भी सेडिमेंट था वो नीचे सेट हो गया, इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिकेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन के बाद क्या होता है, जो ऊपर पानी बच गया, ये क्लीन वाटर, आप इसे धीरे धीरे क्या करोगे, किसी दूसरे बीकर या दूसरे कंटेनर में आप इसको पोर कर लोगे। नीचे जो सेटल्ड इम्प्योरिटीज है, सेटल्ड सेडिमेंट है, उसको बिना डिस्टर्ब किए ऊपर वाले पानी को बहुत स्लोली आपको दूसरे रिसीवर में कलेक्ट करना है, और इसी प्रोसेस को बोला जाएगा डिकेंटेशन। ओके, चलो नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। We can also pass water that contains insoluble impurities through filter paper or a thin cloth to get clean water. This is called filtration. If you want तो आप अपनी इस contaminated water को, यानी कि ऐसा पानी जिसके अंदर insoluble impurities है, आप उसको किसी एक filter paper या पतले से कपड़े के थ्रू भी फिल्टर कर सकते हो, so that you can get clean water, and this method is known as filtration method. जैसे कि एग्जाम्पल 11 है, फोल्ड अ फिल्टर पेपर इन द फॉर्म ऑफ कोन। आपको एक फिल्टर पेपर लेना है और उसको एक कोन की फॉर्म में फोल्ड करना है। ओके, फिर उसको आप एक फनल के अंदर रखोगे, फिट करोगे, जैसे आपको गिवन है यहाँ पे पिक्चर में। अब आपको वो वाटर जिसके अंदर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं उसको फनल के थ्रू पोर करना है। ओके, उस फनल के अंदर क्या होना चाहिए, फिल्टर पेपर होना चाहिए। नेक्स्ट यू विल फाइंड द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कॉट इन द फिल्टर पेपर। जब आप पोर करोगे आप क्या देखोगे कि जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो उस फिल्टर पेपर के अंदर क्या हो चुकी हैं, आपकी कलेक्ट हो चुकी हैं, एंड जो क्लियर वाटर है वो सारा फनल के थ्रू नीचे वेसल में कलेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउअडेज दिस वर्क इज डन बाय फिल्टर मशीन एट होम। आपके घर में फिल्टर मशीन है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्योरीफाइंग वाटर एट होम। अब घर पे हम कैसे पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। सो एज वी ऑल नो, एक हेल्दी लिविंग के लिए प्योर एंड क्लीन वाटर इज वेरी नेसेसरी। इम्प्योर वाटर के अंदर डिजीज कॉजिंग जर्म्स हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, एंड इसके थ्रू ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सीरियस डिजीजेस हो सकती हैं, एनिमल्स के अंदर भी। सो
इसीलिए जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको हमें जर्म्स फ्री बनाना पड़ता है, प्योर बनाना पड़ता है बाय फॉलोइंग सम मेथड्स। सो पहला मेथड है द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टैबलेट। आप क्या कर सकते हो, पानी के अंदर क्लोरीन टैबलेट ऐड कर सकते हो, सो दैट उसके अंदर सब जर्म्स जो है वो सब किल हो जाएंगे, एंड दिस मेथड इज नोन एज क्लोरीनेशन। ओके, सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं, इनको भी हम वाटर के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी पॉपुलर मेथड है वाटर को क्लीन करने का सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। थर्ड, द बेस्ट वे, सबसे बेस्ट जो वे है वाटर को प्योरीफाई करने का, उसमें से बैक्टीरिया एंड जर्म्स को रिमूव करने का, दैट इज बॉइलिंग। पानी को बॉईल करके पिए, वो भी आपका सबसे बेस्ट मेथड है। फिर वाटर कंटेनर शुड बी केप्ट कवर्ड प्रॉपर्ली। जिसमें भी आप पानी रखते हो, वाटर कंटेनर जो आपके घर में है वो प्रॉपर्ली कवर्ड रखने हैं आपको। ओके, फिर उसके बाद आप एक वाटर फिल्टर भी घर पे रख सकते हो जिसके अंदर आप ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करते हो। एंड इस वाटर फिल्टर को हमें क्या करना चाहिए, रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, जो भी आप अपने घर में रखते हो। दिस इज द काइंड ऑफ वाटर फिल्टर, यू शुड क्लीन इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, चलो, so that's all for the chapter. We have discussed many things. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.